Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today we are going to learn about the essay, The Women's Education, written by the well-known writer of India, S. Radhakrishnan. His full name was Sarvepalli Radhakrishnan. He was born on 5th September 1888 and was died on 1975. He was a great educationist, philosopher, and a leader. He had worked as a professor of philosophy in Calcutta University and also became the Indian ambassador to USSR. He worked as a vice chancellor of Banaras Hindu University since 1939 to 1948. He became the second president of India in 1962 and worked till 1967. He wrote many essays about the welfare of education. He wanted to improve the education system of India. He also was in favor of women's education. In this very relation, he had given some guidelines to improve the women education. What should be the structure of women education? It is described in this relation. He had written many essays, and some of them are the Indian philosophy, Hindu view of life, Eastern relations and Western thoughts, and philosophy of Upanishads. The prescribed lesson, women education, is adopted from his well-known essay, The Knowledge. He described about some main statements of Srimad Bhagavad Gita in this relation. He realized that women education is also important to improve the Indian culture, Indian system. So he was in favor of women's education. So, with the help of book, we are going to learn about the women education. Let's see our textbook and know about what Sarvepalli Radhakrishnan has said about the education of women. You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life, and administration. Society requires women of disciplined minds and restrained manners. Whatever line of work you undertake, you should bring it to it an honest, disciplined mind. You will then succeed and have the joy of your work. You are living in an age when there are great opportunities for women. It's the age of scientific era. It's the age of great opportunities where the women are same as the men. They got the same status as the men had got. If the women are great, disciplined, mannerful, they became famous so as the men. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते हैं कि यू आर लिविंग इन एन एज, तुम एक ऐसे युग में निवास कर रहे हो जहां महिलाओं को भी उसी तरह का स्नेह और आदर प्राप्त है जिस तरह का स्नेह और आदर पुरुषों को प्राप्त है. एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, और महिलाओं के लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ स्थान है. वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों के लिए, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए और प्रशासनिक क्षेत्रों में यहाँ हर जगह उनके लिए स्थान है. सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स, क्योंकि समाज को अनुशासित महिलाओं की जरूरत है. वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य क्षेत्र को ले लीजिए. यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड. आपको वहां पर डिसिप्लिन माइंड, अनुशासित मन मस्तिष्क वाली महिलाएं अवश्य दिखाई पड़ेंगी. यू विल देन सक्सीड देन and have the joy of our work.
चाहे महिला हो या पुरुष, अपने किसी भी कार्य के क्षेत्र में अगर वह अनुशासित है, ब्रॉड माइंडेड है, तो निश्चित रूप से उसको अपने कार्य में सफलता मिलने वाली है, ऐसा लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना है। Actually, in our country, education so far as girl education is concerned is not widespread enough. Sarvapalli Radhakrishnan described that in our country, the education for the women is not spread as it may be. राधाकृष्णन जी कहते हैं कि हमारे देश में जो महिलाओं की शिक्षा है, उसका जो क्षेत्र है वो बृहद नहीं जैसा कि उसे होना चाहिए। So every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement. So he described that the education who provided the education to the women, they need to be encouraged. They need to be enforced. वो कहते हैं कि ऐसे संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ महिलाओं को शिक्षा दी जाती है, निश्चित रूप से उन्हें बढ़ावा देने की, उनका प्रोत्साहन करने की जरूरत है। But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but should also be deep. He also said that it is not only to be broad but it also should be deep. न केवल वह बृहद हो बल्कि वह गंभीरता वाला विषय जो शिक्षा दी जाए महिलाओं को, न केवल वह ब्रॉड माइंडेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको बृहद शिक्षा दी जाए, बल्कि वह गंभीरता का भाव लिए हुए शिक्षा हो। एंड वी आर लैकिंग इन डेप्थ। कारण क्या है? क्योंकि हम इसी गंभीरता की कमी से जूझ रहे हैं। We may become learned and skilled. हमें शिक्षित और कुशल होना होगा। But if we do not have some kind of purpose in our life, but he said, if anyone had no purpose in his life, then what will he do? वो कहते हैं कि अगर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा, our lives themselves become blind, तो हमारा जीवन जो होगा कैसा होगा? अंधकारमय हो जाएगा। यदि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम उस लक्ष्य को पाएंगे नहीं और हमारा जीवन लक्ष्यहीन अंधकारमय हो जाएगा। ब्लंडरिंग एंड बिटर, और जीवन बहुत ही कड़वा और नीरस लगेगा। द गीता सेज, our holy book श्रीमद् भागवत गीता सेज, व्यवसायित्मक बुद्धिर एकः, मीन्स मतलब बुद्धि निश्चित है और एक पदीय है। बुद्धि एक मीन्स एक पदीय, वन साइडेड। ट्रूली कल्चर्ड माइंड, देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, क्योंकि गीता का भी मानना है कि एक संस्कारित मस्तिष्क वही होगा दैट शुड बी द सिंगल माइंडेडनेस, जो एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होगा। अ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, और एक ही लक्ष्य की ओर डेडिकेट होगा, एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा, एक ही मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ रहा होगा। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, क्योंकि जो गैर संस्कारित, गैर अनुशासित मस्तिष्क है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, तो उसका पूरा जीवन कई दिशाओं में भटकता रहता है। मीन्स जो जीवन संस्कारित और अनुशासित है, निश्चित रूप से वह एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक पथ पर बढ़ता होगा, और ऐसा जीवन जो अनुशासित नहीं है, अनुशासन विहीन है, निश्चित रूप से वह लक्ष्य विहीन हो जाएगा और वह कई क्षेत्रों में भाग दौड़ करता रहेगा। बहुशाखा हितांशतः, मीन्स उद्देश्यों की बहुलता, एक साथ कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वह भटकता ही रहेगा। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning skill but endow you with a definite purpose in life. So, the writer wants to tell that the education should not be only about learning, but it should be for the skilled, for the provision of the aim of life. वो कहते हैं कि जो हमारे शिक्षा का उद्देश्य हो, न केवल शिक्षित बनाना हो, बल्कि
हमें एक लक्ष्य की ओर अग्रसर कराने वाली शिक्षा हो। व्हाट द पर्पस इज यू हैव टू डिफाइन फॉर योरसेल्फ। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक। हमें अपने जीवन के लिए कौन से उद्देश्य को तय करना है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जैसा कि कहा जाता है विद्या प्रोवाइड्स विवेक, कि विद्या हमें विवेक देती है, बुद्धि देती है। विमर्श रूपीण विद्या गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। और विमर्श रूपीण विद्या मीन्स आपको विवेकशील बनाने वाली जो विद्या है वह कैसी विद्या है, आप अच्छे बुरे का भेदभाव करने में सक्षम हो जाते हैं। एंड यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन। और इसीलिए आपकी शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आप इतने शिक्षित हो जाएं कि आप यह जान लें कि इस पीढ़ी के लिए आपको कितना शिक्षित होने की जरूरत है और क्या जानकारी आपको चाहिए। A purpose which held good centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing condition of our country and of the world. And the writer says to us that the education system of ancient time is not so important for the changing world of today. वो कहते हैं कि जो पहले की शिक्षा थी वह आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए और इस बदलाव भरे जीवन के लिए, जैसा कि हमारा देश और विश्व दोनों बदलाव की ओर बढ़ रहा है, तो वही शिक्षा केवल हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। सो द पर्पस विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। सो द राइटर वांट्स टू टेल दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी द पर्पस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर न्यू जनरेशन एंड आवर प्रेजेंट जनरेशन। जो हमारे राइटर हैं एस राधाकृष्णन जी कहते हैं कि इसलिए हमारी शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो हमारे आज की ज़रूरत, वर्तमान ज़रूरत जो है और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरत जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा होनी चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट we use our hymns and it saying Shanti, Shanti, Shanti. The teacher and the people are expected to avoid hating each other every time we start. According to Srimad Bhagavad Gita, when we are going to start our education, we should have to tell Shanti, 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 because saying this word we are going to avoid hating manners to us, our companion, our friends, our colleagues. राधा कृष्णन जी कहते हैं कि जो हमारे उपनिषद कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य की शुरुआत करने के साथ ही 3 बार शब्दों को दोहराना चाहिए, शांति शांति शांति। और ऐसा करने के साथ क्या होगा, द टीचर एंड पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। ऐसा करके जो शिक्षक और जो शिष्य हैं वह एक दूसरे से घृणा करना बंद कर देंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। कंपैशन, दया इज द क्वालिटी which is more characteristic of women than of men. Yes, Radhakrishnan says that the compassion, the feeling of kindness is more important for the women than the men. वो कहते हैं कि स्त्रियों में दया की भावना पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, वह उनका दयावान होना गुण जो है वह महिलाओं का विशेष गुण है। And I read recently a book which speaks about the decline of womanhood and says that this is so because there is a decline in compassion. And he says that I read in a book where the decline of womanhood, वो कहते हैं कि हमने देखा, हमने एक पुस्तक में पढ़ा कि महिलाओं में स्त्रीत्व की कमी हो रही है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, लैक ऑफ कंपैशन। उनमें दया का भाव कम होता है, दया की भावना उनमें खत्म होती जा रही है, इसलिए उनमें स्त्रीत्व की भावना ही नहीं रह जा रही है। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। उनका कहना है कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो महिलाओं का जो प्राकृतिक गुण है वह क्या है, उनका दयावान होना है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, एक मानव के रूप में, इफ यू आर नॉट काइंड, इफ यू आर नॉट कंपैशनेट, इफ यू आर नॉट दयावान, इफ यू आर नॉट कंपैशनेट, इफ यू आर नॉट दयावान, इफ यू आर नॉट कंपैशनेट, 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 इ
then you are not a human being। वो कहते हैं कि अगर आप में दया का भाव नहीं है तो आप मानव नहीं, आप मनुष्य नहीं माने जाएंगे। It is therefore essential for every human being to develop the quality of considerateness, kindness and compassion। So it says that every human being have to cultivate the quality of considerateness, kindness and compassion। वो कहते हैं कि लोगों में भावना का विस्तार होना चाहिए। लोगों को अपने अंदर इन महत्वपूर्ण गुणों को, सहानुभूति के गुण, दया के भाव और अपने को विवेकशील बनाने का भाव लोगों को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। विदाउट दीज क्वालिटीज, क्योंकि बिना इन गुणों के वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम क्या हैं? इन भावनाओं के न होने पर हम एक मानव के रूप में पशु हैं, नर पशु, यानी एक नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। देयर इज अ फेमस वर्स which tells us Shamsara Vishvraksha। He wants to tell a famous sukti to us that Sansar Vishvraksha। वह कहते हैं कि संसार क्या है? संसार एक विष का वृक्ष है। In this imperfect world, sansar, there are two fruits of inimitable quality। इस संसार में inimitable quality means ये दो ही अनुकरणीय फल हैं, दो ही वस्तुएं हैं। They are study of our great classics and communion with great minds। ये दो ही अनुकरणीय चीजें हैं जिनको पाने का, जिन्हें प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए। These two are the things which would men's mind and heart। और ये दो चीजें क्या हैं? मानव मस्तिष्क और उनका हृदय है। I am anxious that our great classics should be studied। He wants that his great classics should be read, should be learned। चाहते हैं कि जो उनके महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। And the classics of our century of which we are the inheritors। और उन सभी गौरवपूर्ण ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए जो हमारी विरासत हैं। It is in a small dialogue in an Upanishad। क्यों? और इसको एक छोटे शब्द में कहा जाए तो हमारे जो उपनिषद हैं, that a question is put, जहाँ एक प्रश्न उठता है, what constitutes the essence of good life, कि एक अच्छे जीवन के क्या ध्येय होनी चाहिए। The teacher replies, शिक्षक उत्तर देता है, did not you hear the answer? क्या तुम्हें इसका उत्तर नहीं सुनाई पड़ा? There are the thunder clap, जब बिजली की गड़गड़ाहट होती है और उसके साथ शब्द आता है दड़ दड़ दड़, means the immediately the teacher explained। ठीक उसी समय शिक्षक उत्तर दे देता है। The means of triple da is dam, dam और दया। मीन्स जो दड़दड़ाहट के साथ आवाज आती है द की, उसको वो तीन नाम देता है, दान, दाम और दया। एंड दीज आर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। और यही तीन चीजें अच्छे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। यू मस्ट हैव दाम ऑफ सेल्फ कंट्रोल। वह कहते हैं दाम क्या होना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल। मीन्स दाम क्या है? आपका स्वयं पर नियंत्रण। एंड द रेस्ट्रेंट विच इज द एसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ। अपने पर नियंत्रण, अपने पर अनुशासन रखना यह एक अच्छे गुण का, अच्छे जीवन का पहला गुण है। इन द यू मस्ट हैव दाम। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, his mother tells him, because in the great epic Ramayana when Lakshman was going to exile, लक्ष्मण जो है जब वन को जाने वाले होते हैं तो उनकी माँ कहती हैं, look upon Rama as your father। राम को अपने पिता के रूप में देखना। look upon Sita as myself as your mother। और सीता को
मेरी तरह अपनी माँ के रूप में देखना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, गो माय डियर। उन्होंने कहा बेटे जो वन है उस वन को अयोध्या मानकर चलना, और इसी भाव के साथ तुम राम के साथ वन में जाओ। डियर स्टूडेंट्स, read till here with the help of this video. We will meet with the next part of this lesson in the next video. Till then,